Hello guys, welcome to Professor Vinay More's DG class. We are learning RSC and there is a fourth module is a psychometric process. In previous lectures, we learned different types of psychometric processes. Today we are going to learn how to solve the numericals on psychometric processes. Before starting numericals, we will revise psychometric chart once again. So let's start. I have shared a psychometric chart on your screen. There is a one point P is already marked. Now we have to understand how to note down their different readings. Like if there is a location of the P is already marked, and if we go towards right side horizontal line, we will get W. W means specific humidity. And if we go towards left side up to saturation curve, we will get dp. dp means dew point temperature. If we move towards downward in a straight line, we will get db. db means dew point dry bulb temperature. I'm going to revise once again. W means specific humidity, dp means dew point, and db means dry bulb temperature. If we move diagonally in a upward side up to saturation curve, we will get WB. WB means wet bulb temperature. If we move forward up to enthalpy scale, we will get H. H means specific enthalpy. If we if we track the location of the P on curve, we will get value of RH. It will be in the form of percentage. RH means relative humidity. And if we move diagonally towards downward, we will get SPV. SPV means specific volume. So I will repeat it once again. We are seeing P on your screen. If we consider horizontal line and if we move towards right side up to the scale, we will get W. W means specific humidity. If we move towards left side on the same horizontal line up to saturation curve, we will get dp, dew point temperature. If we move towards downward in a straight line, we will get db means dry bulb temperature. If we move diagonally up in upward side up to the saturation curve, on a saturation curve, we will get wb means wet bulb temperature. And if we continue up to the enthalpy scale, we will get H. H means specific enthalpy. And if we move diagonally in downward direction, we will get SPV. SPV means specific volume. I hope you understand this. And now we are going to move in numerical parts. Question number 1, page number 35, and question number 10. Page number 35, question number 10. Please open your question bank. Page number 35, question number 10. Okay. First numerical is on sensible heating. 1.2 meter cube per second of air
at 15 degrees Celsius and 90% RH is heated to 50 degrees Celsius without addition of moisture. Find the heat added and specific humidity of the air. क्वेश्चन 2 बार आ चुका है और 6 मार्क्स के लिए इसका वेटेज है. सो देखते गिवन डेटा क्या दिया है. सबसे पहले चैप्टर आइडेंटिफाई करना है क्या क्या गिवन है. 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड. मीटर क्यूब पर सेकेंड मीन्स दिया है वॉल्यूम फ्लो रेट. 15 डिग्री सेल्सियस is a temperature is given and nothing is mentioned, it means it will be a dbt, dry bulb temperature. And 90% RH means relative humidity. After seeing this data, ये 100% वो रहेगा साइकोमेट्रिक का न्यूमेरिकल्स. Okay, so 1.2 meter cube per second of air at a 15 degrees Celsius and 90% RH is heated to 50 degrees Celsius without addition of moisture. ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हम मॉइस्चर को ऐड नहीं कर रहे, वी आर जस्ट हीटिंग इट. सो इट्स अ न्यूमेरिकल ऑफ सेंसिबल हीटिंग. फाइंड द हीट एडेड, कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर मीन्स W हमें फाइंड आउट करना है. बट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मेंशन नहीं किया है कि इनलेट या फिर आउटलेट. सो हमें W1 प्लस W2 दोनों फाइंड आउट करना होगा. सो सॉल्यूशन देखते हैं. ओके, V dot 1.2 meter cubes per second is given. TD1 15 degrees Celsius is also given. Relative humidity, so phi 1 is a 90 percentage is already given, and TD2 is a 50 degrees Celsius is mentioned. And numerical is on sensible heating, heating without moisture addition. And find out can I heat absorb and W1 plus W2. Okay, on screen you are seeing a rough psychometric chart. First of all, we have to understand how to locate this point on psychometry. In given data, only TD1 and phi1 is given, are given. So सबसे पहले देखना है कि TD1 कहाँ पे होता है. So TD1 होता है वो डाउनवर्ड साइड में, ड्राई बल्ब टेम्परेचर्स. एंड phi मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व्स. सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको ट्रैक करना है रफली. सो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि साइकोमेट्रिक चार्ट पे इनको मार्किंग कैसे करना है. सबसे पहले आपको ट्रैक करना पड़ेगा 15 डिग्री सेल्सियस का लाइन वर्टिकली. एट द सेम टाइम आपको चेक करना होगा कि 5-1 90% का कर्व कहाँ पे है. सो यू विल गेट पॉइंट नंबर 1. जैसे पॉइंट नंबर 1 ट्रैक होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है सेंसिबल हीटिंग विदाउट एडिशन ऑफ मॉइस्चर. सो सेंसिबल हीटिंग मीन्स पॉइंट नंबर 2 विल बी इन द राइट साइड इन अ स्ट्रेट लाइन. सो आपको इनडायरेक्टली आपको पता होगा कि आपको राइट साइड में जाना है और पॉइंट नंबर 2 किसी पे तो लाइन पे कहीं पे तो ये पॉइंट होगा. सो हमें नेक्स्ट ट्रैक करना है कि पॉइंट नंबर 2. तो पॉइंट नंबर 2 के लिए डेटा उन्होंने गिवन है, दैट इज अ 50 डिग्री सेल्सियस. सो 50 डिग्री सेल्सियस को आपको चेक करना है. अब वहां पे आपको उस स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करना है. सो यू विल गेट पॉइंट नंबर 2 and this will be a point number 1. I'm going to repeat it once again. सबसे पहले आपको चेक करना है कि TD1 15 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है. सो सबसे पहले मैंने उसको मार्क किया, तो वो एक स्ट्रेट लाइन मैंने कंसिडर की कि इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे तो ये 15 डिग्री सेल्सियस पे पॉइंट नंबर 1 होगा. नेक्स्ट डेटा दिया था
90%, 5 is a 90%, तो 90% का कर हमने चेक किया कहाँ पे है, तो यहाँ पे मुझे मिला पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट नंबर 2 कहाँ पे होगा, तो न्यूमेरिकल है सेंसिबल हीटिंग पे। सेंसिबल हीटिंग मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन विच विल मूव टुवर्ड्स राइट साइड, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सो आपको एक लाइन पता होगा। अभी मुझे चाहिए पॉइंट नंबर 2 TD2, जो कि गिवन है, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस आपको चेक करना है कि कहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। तो 50 डिग्री सेल्सियस से अगर आप वर्टिकल लाइन कंसिडर करते हैं, देन यू विल गेट पॉइंट नंबर 2। सो इस तरह आपको ये 1 to 2 प्रोसेस पता चलेगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है। आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, दैट इज QA एंड W2। बट बिफोर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल आई विल शेयर वन फाइल विथ यू कि इसको रफली सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कुछ स्टेप्स आपके साथ शेयर किया है। सबसे पहले मैंने बोला है कि रिमेंबर पार्ट, कि आपको क्या याद रखना है। ये फॉर्मूला आपके लिए काम का है, दैट इज small v, that is a specific volume, is equal to volume flow rate divided by mass flow rate. So meter cube per second divided by kg per second. So indirectly आपको मिलेगा meter cube per kg and it is a unit of specific volume. So ये फॉर्मूला आगे जाके हमें यूज होने वाला है। तो सबसे पहले अभी का जो न्यूमेरिकल चालू था, तो वहां पे डेटा जो गिवन था, दैट इज v.1, TD1 गिवन था, phi1 गिवन था, TD2 गिवन था, और प्रोसेस बोला था सेंसिबल हीटिंग। सो हमने पॉइंट नंबर 1 एंड 2 हमने मार्किंग कर लिया। सो जैसे ही नंबर पॉइंट नंबर 1 और 2 हमें मिलता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एंथैल्पी स्केल मींस डायगोनली हमें मूव करना है अपवर्ड में। जहाँ पे हमें क्या किया है, एक एंथैल्पी का स्केल गिवन है, तो वहां से हमें पता चलेगा H2 और H1। सो हमें उसको मार्किंग करके लेना है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला है M डेल्टा H, M डॉट ए, और ऑफ कोर्स यहाँ पे क्लियरली पता चला है H2 इज ग्रेटर देन H1, सो M QS इज इक्वल टू M डॉट A H2 minus H1. So H2 and H1 will get from psychometric chart, and but we don't know the M dot A. How to solve M dot A? तो यहाँ पे steps आपको दिया हुआ है। M dot A is nothing but, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था, M dot means is equal to volume flow rate divided by specific volume. So यहाँ पे volume flow rate भी आपके साथ given है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें उसका लोकेशन चेक करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें पता चलेगा साइकोमेट्रिक चार्ट से। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर किया हुआ है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे अभी नेक्स्ट PDF में। सो हमें यहाँ पे साइकोमेट्रिक चार्ट H1 एंड H2 मिला है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक्चुअल साइकोमेट्रिक चार्ट। ओके, सो गिवन डेटा में स्टार्टिंग में दिया था TD1 शुड बी 15 डिग्री सेल्सियस एंड phi1 शुड बी 90 डिग्री सेल्सियस। तो TD1 15, TD1 इज अ 15 डिग्री सेल्सियस, तो ये स्ट्रेट लाइन हमने 15 डिग्री सेल्सियस वाला था, और 90% का कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा था, तो हमें मिला था पॉइंट नंबर 1। एंड स्ट्रेट लाइन हमने कंसिडर किया था, और जहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला था कि नेक्स्ट TD2 कितना था, दैट इज अ 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे हमने मार्किंग करके लिया। सो हमें मिला पॉइंट नंबर 2। ओके,
सो अभी देखते हैं कि एंथैल्पी कैसे फाइंड आउट करता है। सो आपके पास यहाँ पे दो दो पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है। तो मेरा जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट नंबर दिस वन, दिस इज अ पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज अ पॉइंट नंबर 2। सो आपको डायगोनली जाना है अप टू दिस स्केल पे। तो यहाँ पे आपको चेक करना है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 जो है, क्योंकि न्यूमेरिकल हीटिंग का है, सो दिस इज अ पॉइंट नंबर 1, दिस इज अ पॉइंट नंबर 2। सो 1 अगर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लियरली पता चला स्केल पे H1 जो है दैट इज 40 एंड H2 जो है, H2 के लिए आपको जाना पड़ेगा डायगोनली, दिस इज अ पॉइंट नंबर 2 और वो दैट इज अप टू 75 एंड 80 के बीच में है। इट मीन्स 75 और 80 के बीच में है। वो आपको एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा। देन यू विल गेट H1 एंड H2। सो आपको पता चला कि 1 एंड 2 कैसे चेक करते हैं स्केल पे। और सेम यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा W, दैट इज अ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, सो आपके पास यहाँ पे दो रीडिंग्स अवेलेबल है, H1 एंड H2। सो अभी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स वी विल रिक्वायर्ड m डॉट a, और m डॉट a का फॉर्मूला है स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लो रेट डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ऑलरेडी वॉल्यूम फ्लो रेट इज गिवन इन गिवन डेटा, दैट इज 1.2, दैट इज ये ऑलरेडी गिवन है 1.2, बट वी डोंट नो स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो वो फाइंड आउट कैसे करना है, तो उसके लिए वापस से जाना पड़ेगा आपको चार्ट में। वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल v1। सो वापस से हमें चार्ट में जाता है। ओके, दिस इज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम स्केल 0.08 मीटर क्यूब पर केजी एंड 0.005 मीटर क्यूब पर केजी। सो ये जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली किसी भी लाइन पे नहीं आ रहा है। इट इज इन बिटवीन 0.08 एंड 0.05। सो हमें उसको ट्रैक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करना पड़ेगा, इमेजिनरी लाइन। सो इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट नंबर 1 एंड दिस वन इज अ A एंड दिस वन इज अ B। आपको काम छोटा सा काम करना है। तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस लाइन टू पॉइंट नंबर 1 एंड सेकेंड लाइन टू पॉइंट नंबर 1, वो आपको नोट डाउन करना है। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पॉइंट नंबर 1 इज इन बिटवीन A टू B, और यहाँ पे 0.08 था, दिस इज 0.08 सॉरी 0.85। सो आपको V1 माइनस VA इंटरपोलेशन मेथड यूज करना है। V1 माइनस VA अपॉन टोटल VB माइनस VA। सो आपको इज इक्वल टू लेंथ बिटवीन 1 टू A एंड B टू A, ये आपको काउंट करना है, ये मेजर करना है बाय यूजिंग अ साइकोमेट्रिक चार्ट। सो VA तो ऑलरेडी गिवन था वहाँ पे 0.8, तो वो हमें पता था। VB 0.8 था तो वो भी हमें पता था। VA पता है। लेंथ हमने मेजर किया
ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट, तो अननोन सिर्फ एक ही था, दैट इज V1। सो हमें मिल जाएगा V1। और जैसे ही V1 मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम पता चलेगा, तो हम वहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यू विल गेट m डॉट a। ओके, इट्स वेरी सिंपल। आपको साइकोमेट्रिक चार्ट यूज करना है, कुछ इंटरपोलेशन मेथड यूज करना है, और आपको m डॉट a फाइंड आउट करना है। जैसे m डॉट a पता चलेगा, आपको इजीली क्या पता चलेगा, हीट एडेड, दैट इज m डॉट a इज इक्वल टू H2 माइनस H1। नाउ सेकेंड क्वेश्चन वाज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो था वो ना तो हमने हीट ऐड किया था, सॉरी ना तो हमने मॉइस्चर ऐड किया था, ना तो मॉइस्चर हमने रिमूव किया था। सो इट वाज अ कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइन। और स्पेसिफिक डब्ल्यू हमें कहाँ पे मिलता है, तो राइट साइड में। तो इट वाज अ कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो जो था ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 था, और वो हमें वो स्केल से पता चलेगा। आई विल शो यू। ओके, यहाँ पे जो स्केल दिया हुआ है, दिस स्केल इज अ डिफरेंट, दिस इज SHF, दिस स्केल इज अ डिफरेंट एंड दिस स्केल इज अ डिफरेंट। सो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे एग्जैक्टली मेरा W कितना आया हुआ है। सो इट इज ऑलमोस्ट 0.0010 के आसपास ही यही है, 0.0010। ये आपका रहेगा W, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, सो kg पर kg ऑफ DA। आई होप फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। Now second numerical. Question number 2, page number 36, question number 8. Page number 36, question number 8. Page number 36. Check your question bank. Okay. Next numerical is on sensible cooling. Atmospheric air with dry bulb temperature of 28 degrees Celsius. क्या बोला है, एटमॉस्फेरिक एयर जिसका डीबीटी दिया है उन्होंने 28 डिग्री सेल्सियस, एंड डब्ल्यूबीटी दिया है 17 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज कूल टू 15 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है वेदर इट इज डीबीटी और डब्ल्यूबीटी। सो ऐसे केस में आपको इसको कंसिडर करना है डीबीटी ऑलवेज, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट। वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। सो इट मीन्स आइदर वो सेंसिबल हीटिंग होगा या तो फिर सेंसिबल कूलिंग होगा। तो वापस से हम टेम्परेचर्स देखते हैं। स्टार्टिंग इनिशियली था, इट वाज 28, बाद में ये हुआ 15 डिग्री सेल्सियस। तो ऑफकोर्स ये क्या है, किसका न्यूमेरिकल है, इट्स अ सेंसिबल कूलिंग का। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है ओरिजिनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओरिजिनल मीन्स स्टार्टिंग, initial relative humidity means phi 1, final relative humidity means phi 2, and final wet bulb temperature means WBT. Okay, we will move towards our solution. Okay, so TD1, TW1, TD2 it was given, और हमें फाइंड आउट करना है इनिशियल एंड फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड वेट बल्ब टेम्परेचर TW2। और वहाँ पे एडिशनली हमने फाइंड आउट ये भी करेंगे कूलिंग कैपेसिटी कितना है कॉइल का, एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इट्स एडिशनल डेटा। टेक अ मास फ्लो रेट ऑफ एयर, इट इज 1.5 kg पर सेकेंड। सो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एक रफली उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। सो आई एम गोइंग टू शेयर नेक्स्ट PDF विथ यू। ओके, तो यहाँ पे आपको TD1 गिवन है, TW1 गिवन है, TD2 गिवन है, m डॉट है, सेंसिबल कूलिंग है, phi 1 phi 2 TW2 H1 H2 आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको गिवन डेटा क्या दिया वो चेक करना है, दैट इज TD1 गिवन है। सो आपको सबसे पहले मार्किंग करके लेना पड़ेगा TD1 कहाँ पे है। नेक्स्ट
गिवन है TW1, TW1 मीन्स दैट इज अ स्पेसिफिक वेट पल्प टेम्परेचर्स, तो वो आपको मार्किंग करके लेना पड़ेगा कि वो कहाँ पे होगा। तो वहाँ से यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन जाएगा TD1 का, और TW1 का एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा, तो वहाँ पे आपको मार्किंग हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। सेकेंड उन्होंने बोला है TD2, तो वो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे उसका लोकेशन है, और फिर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके इसको फाइंड आउट करना है। सो वापस से आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ कि कैसे कर सकते हैं। ओके, हियर यू कैन सी सबसे पहले दिया था TD1, वो कितना है 28 डिग्री सेल्सियस। सो हमने उसका मार्किंग करके लेंगे एक स्ट्रेट लाइन में। सेकेंड गिवन डेटा क्या है, एक मिनट, TW1 दैट इज 17 डिग्री सेल्सियस। तो हम सबसे पहले 17 कहाँ पे है, सैचुरेशन कर्व पे है, वो उसको मार्किंग करके लेना है, और फिर वहां से डायगनली हमें डाउनवर्ड में आना है। सो वी विल गेट पॉइंट नंबर 1। वापस रिपीट करता हूँ, TD1 28 डिग्री सेल्सियस, DBT का स्केल देखना है, वहां से हमें वर्टिकल लाइन कंसिडर करनी है अप ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस का, और सैचुरेशन कर्व से हमें 17 डिग्री सेल्सियस का डायगोनल डाउनवर्ड लाइन को कंसिडर करना है। सो वी विल गेट पॉइंट नंबर 1। और इट्स अ न्यूमेरिकल ऑफ सेंसिबल कूलिंग, तो हमें पहले से पता होगा कि मेरा जो लाइन जो रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा, बट कूलिंग है इसलिए आई हैव टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, क्योंकि मुझे टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। सेकेंड TD2 उन्होंने गिवन था दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस, सो मुझे 15 डिग्री सेल्सियस का वर्टिकल लाइन कंसिडर करना है। वो लिटिल बिट गलत हो गया। सो 15 डिग्री सेल्सियस का लाइन कंसिडर करता हूँ तो मुझे मिलेगा पॉइंट नंबर 2। और जैसे ही मुझे 1 और 2 पता चले गए, मुझे एंथैल्पी के स्केल पे जाके मुझे H1 और H2 को क्या करना है, नोट डाउन करना है। ओके, साइकोमेट्रिक चार्ट चेक करते हैं। ओके, सबसे पहले उन्होंने गिवन था 28 डिग्री सेल्सियस, तो हमने यहाँ पे TD1 को मार्किंग किया 28 डिग्री सेल्सियस का वर्टिकल लाइन। 28 डिग्री सेल्सियस का वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट हमें बोला था 17 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 15 और 28 ये मार्किंग दिया हुआ है। तो आपको काउंट करना है कि बीच में लाइंस कितना है, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ इज 21 20। सो मुझे 17 कंसिडर करना है। सो 15 15 16 और 17। सो मेरा पॉइंट नंबर 17 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। तो वहां से मुझे 17 डिग्री सेल्सियस का मुझे क्या करना है, डायगोनल लाइन कंसिडर करना है। सो आई विल गेट पॉइंट नंबर 1, यहाँ से 28 और यहाँ से 17। सो पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट मुझे चेक करना था कि पॉइंट नंबर 2 कहाँ पे रहेगा, बट कूलिंग हो रहा है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन निकलना है। बट मुझे पता नहीं कि उसका लोकेशन कहाँ पे, तो मुझे गिवन डेटा में दिया है TD2 दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। तो 15 डिग्री सेल्सियस पे मुझे पॉइंट नंबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और फिर दोनों के मुझे यहाँ से H2 और H1 मुझे मेजर करना है। सो सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने पूछा था 5 कहाँ पे है, 5 1 क्या है, 5 2 क्या है। तो वो कौन से पॉइंट पे आए हैं, कौन से कर्व पे है, वो आपको नोट डाउन करना है। सो यू विल गेट 5 1
and phi 2. नेक्स्ट उन्होंने पूछा है दैट इज अ फाइनल वेट बल्ब टेम्परेचर TW2 कितना है. सो TW2 के लिए आपको जाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल स्केल पे. मींस हियर यू विल गेट वैल्यू ऑफ W. इफ अगर आप पॉइंट कंसिडर करते हो एनी वन और टू, मूव हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट साइड, यू विल गेट W. सो यहाँ पे ऑलरेडी W उन्होंने मार्किंग किया है दैट इज 12 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट, sorry, it's a final weight bulb temperatures. I was talking about a specific humidity. It was my mistake. So you have to move towards saturation curve. This is a wrong. Don't solve for this. It's a specific humidity, not a weight bulb temperatures. तो आपको 2 को मार्किंग करके लेना है. So यहाँ पे here you have to move towards. मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ. Okay. This is a point number 2. So आपको यहाँ पे जाना है diagonally. ये आपको रहेगा पॉइंट नंबर, ये रहेगा आपका TW2. सो इट इज इन बिटवीन 15, सॉरी 10 एंड 15. सो आपको काउंट करना है 11 और 12. सो TW2 आपका रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो इट्स राइट 12 डिग्री सेल्सियस. फ्रॉम साइकोमेट्रिक चार्ट H1 एंड H2 का वैल्यूज भी पता चलेगा. इट विल बी इन द किलो जूल पर kg. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला था दैट इज अ कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल. और कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कूलिंग कैपेसिटी का, हीट कितना एब्जॉर्ब होगा दैट इज m डॉट डेल्टा एच. सो m डॉट ए गिवन था, H1 H2 फाइंड आउट किया था साइकोमेट्रिक चार्ट से. सो वी विल गेट द वैल्यू इन किलोवाट. बट अगर इन टर्म्स ऑफ टर्न्स में मुझे आंसर चाहिए तो मुझे उसको सिंपली क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 3.5. सो आई विल गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन वाज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर फाइंड आउट करना था. सो मैंने जैसे बोला था कि आपको पॉइंट के राइट साइड में आपको मिलेगा स्केल पे W1 और W2. तो उसको भी आप मार्किंग करोगे तो यू विल गेट 0.0077 kg पर kg ऑफ DA. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 9. पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 9. Okay, air at TD, dry bulb temperature is given, relative humidity is also given. It undergoes a constant humidity process, means वहाँ पे ना तो humidification हो रहा है ना तो dehumidification हो रहा है. And final state is a 20 degrees Celsius. Initially it was a 30, then it becomes 20. So it's a numerical of sensible cooling. Enthalpy of, find enthalpy of air at a final state means आपको H2 find out करना है. And cooling produced by the coil means आपको QA QR Q rejected आपको find out करना है. It's a very much similar to the previous numericals. Okay, this is a question number 4. It's a next numerical. Question number 4 is a page number 38. Question number, page number 38. Question number 20. Page number 38. Question number 20. Okay, the atmospheric air at 30 degrees Celsius
TBT, and 75% RH. RH means relative humidity. Enter a cooling coil at the rate of 200 meter cube per minute. The coil DPT is a 14 degrees Celsius and bypass factor of the coil is 0.1. Determine temperature of the air leaving the coil, the capacity of the cooling coil in terms of refrigeration and kilowatt, the amount of water vapor removed per mm per minute चाहिए actually वो, and the sensible heat factor for the process. So यहाँ पे क्या given है? The temperature of the air, the atmospheric air at a 30 degrees Celsius means dBT दिया हुआ है, that is 30 degrees Celsius, and first point का RH relative curves दिया हुआ है, relative humidity दिया हुआ है 75% RH. So ये data हमें help करेगा point number 1 locate करने के लिए. It is enters in a cooling coil at the rate of 50 meter cube per minute. Enter कर रहे हैं और यूनिट से पता चला है इट्स अ मीटर क्यूब पर मिनट है. सो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ मीटर क्यूब पर सेकंड में. सो मुझे दिया हुआ है V1 डॉट. नेक्स्ट द कॉइल एट DPT. कॉइल का DPT मीन्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दिया हुआ है 14 डिग्री सेल्सियस एंड द बाईपास फैक्टर इज अ 0.1. फाइंड आउट करना है टेम्परेचर ऑफ द एयर लिविंग द कूलिंग कॉइल मीन्स TD2 आपको फाइंड आउट करना है. द कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग कॉइल इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड किलोवाट आपको QR फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव पर मिनट. सो आपको m डॉट V फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट सेंसिबल हीट फैक्टर, तो उसका एक अपना फॉर्मूला है SHF आपको फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो TD1 30 डिग्री सेल्सियस गिवन था. 5 1 75% जस्ट गिवन है. V1 वॉल्यूम फ्लो रेट दिया था. सो हमने एयर रिजर्वायर हमने शो किया है यहाँ पे कि इनकमिंग एयर इज गिवन एट 1. इट इज एट आउटलेट इट इज अ 2 एंड कूलिंग कॉइल कंडीशन इज अ 3. और आपको फाइंड आउट करना है TD2 QA m डॉट R एंड SHF. तो सबसे पहले इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है तो आपको वो देखना है. यहाँ पे बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला हमने कल डिस्कस किया था. बाईपास फैक्टर होता क्या है कि यहाँ पे बाईपास फैक्टर मीन्स इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस टू द इमेजिनरी टेम्परेचर डिफरेंस. मीन्स क्या अचीव नहीं हुआ और क्या हो सकता था. तो यहाँ पे क्या कितना टेम्परेचर अचीव नहीं हुआ, दैट इज TD2 माइनस TD3. ये एक्चुअल में हुआ. एंड TD क्या हो सकता था, दैट इज TD1 माइनस TD2. दिस इज द बाईपास फैक्टर कि एक्चुअल में हीट लॉस हो रहा है 1 to 2 और कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना है 14 डिग्री सेल्सियस. तो ये बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद रखना है, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा. ओके. सो यहाँ पे बाईपास फैक्टर ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 0.1. TD2 वो तो क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं है. TD3 ADP मीन्स एट अ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, एट अ ड्यू पॉइंट ADP मीन्स एट अ ड्यू पॉइंट, और वो गिवन है कॉइल का दैट इज 14 डिग्री सेल्सियस. सो TD1 पता है, बाईपास फैक्टर पता है, सो अननोन था TD2. यू विल गेट पॉइंट नंबर 2. ओके. तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे TD1 दिया था 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमने एक वर्टिकल लाइन कंसिडर किया पॉइंट नंबर 1 मिलने के लिए. सेकेंड डेटा गिवन था 5 1 इज अ 75%. तो आपको कर्व देखना है 5 का जो यहाँ से पास होगा, जो रहेगा 75% पे. वो ऑफकोर्स इन बिटवीन रहेगा 70 और 80 के बीच में.
तो आपको इमेजिनरी करके वो कंसिडर करना है पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 के बारे में इतना डेटा पता नहीं है, ओनली इतना ही फाइंड आउट हुआ है कि वो इट इज इन बिटवीन 15 एंड 16, 15.6। सो एग्जैक्टली कहाँ पे पता नहीं है, बट उन्होंने कॉइल का एडीपी गिवन था। एडीपी वाज 14 डिग्री सेल्सियस एट अ ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट होता है सैचुरेशन कर्व पे, सो वो सैचुरेशन कर्व पे रहेगा। तो यहाँ पे आपको चेक करना है 14 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है, तो वो रहेगा आपका पॉइंट नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 3। ओके, सो इनकमिंग एयर वाज एट कंडीशन नंबर 1 और कॉइल जो मेंटेन था वो पॉइंट नंबर 3 पे मेंटेन था। तो अगर मेरा एयर से पास हो रहा है तो ऑफ कोर्स वो इन बिटवीन 1 एंड 3 रहेगा। मुझे उसका क्या करना है, लोकेशन फाइंड आउट करना है कि पॉइंट नंबर 2 मेरा कहाँ पे है। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे मुझे पता चला इट इज 15.6। तो मुझे यहाँ पे मार्किंग करके लेना है कि 15 और 16 के बीच में 15.6 कहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं वर्टिकली जाता हूँ तो मुझे मिलेगा पॉइंट नंबर 2। ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन। सबसे पहले आपको मार्किंग करके लेना है 30 डिग्री सेल्सियस का वर्टिकल लाइन, 75% का कर्व। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट नंबर रहेगा 1। नेक्स्ट 2 का लोकेशन पता नहीं था, बट 2 का हमें जस्ट इतना ही पता था, दैट इज अ 15.6। सो हमने देखा कि नेक्स्ट डेटा क्या आता, दैट इज एडीपी एट अ ड्यू पॉइंट। तो एडीपी मेंटेन था 14 डिग्री सेल्सियस पे। तो 14 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे था, सैचुरेशन कर्व पे एडीपी हमने मार्किंग करके लिया, 1 एंड 3 को कनेक्ट किया। नेक्स्ट टीडी टू 15.6 का वर्टिकल लाइन हमने इंटरसेक्ट किया, तो मुझे वहां पे मिला पॉइंट नंबर 2। ओके, और चार्ट से हमें यहाँ पे W1 W2 ये डेटा हमें फाइंड आउट करके लेना है कि W1 कितना है, W2 कितना है, H1 कितना है, H2 HA फैक्टर क्या है वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं, और H1 कितना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि हमें SHF फाइंड आउट करना है। SHF होता है सेंसिबल हीट फैक्टर। तो उसका एक अपना फॉर्मूला है, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डॉटेड लाइन से शो किया है 1 टू A, एक ट्रायंगल फॉर्म किया हमने 1 टू A एंड A टू 2। तो 2 टू A यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सो इट्स अ सेंसिबल हीट। सो H T टू HA क्या है, सेंसिबल हीट। नेक्स्ट A to 1, वहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री कांस्टेंट है, बट वहाँ पे ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है। सो HA to H1 वहाँ पे होगा LH, latent heat। ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन। 2 to A के बीच में टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज, सो इट विल बी सेंसिबल हीट वहाँ पे एक्सचेंज होगा। एंड A to 1 वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, सो वो लेटेंट हीट रहेगा, SHH एंड LH। तो सबसे पहले अभी आपको चेक करना है कि मुझे गिवन डेटा के बाद क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला था एम डॉट ए आपको फाइंड आउट करना है, मास फ्लो रेट। और मास फ्लो रेट क्या होता है, दैट इज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम फ्लो रेट। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए वापस से जो लास्ट हमने देखा था, इंटरपोलेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मुझे तो वो इंटरपोलेशन मेथड यूज करके मुझे V1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो V1 आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि उसका लोकेशन क्या रहेगा। ऑफ कोर्स वहाँ पे दो कर्व्स हो गए, तो हम वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। हम इसको A बोलेंगे, हम इसको B बोलेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, और फिर वहाँ पे इंटरपोलेशन मेथड यूज करेंगे। सो यू विल गेट V1 0.8867 मीटर क्यूब पर kg। नेक्स्ट
V1 that is a वॉल्यूम फ्लो रेट was given, वो मीटर पर मिनट में दिया था, सो वो एज इट इज हमने लिया और वहाँ पे एम डॉट फाइंड आउट किया और केजी पर मिनट का हमने कन्वर्जन किया केजी पर सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन था फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग कॉइल इन टर्न्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, सो इट्स अ क्यू ए एम डॉट ए। और अभी यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 1 to 2 जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स H1 क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, H1 विल बी ग्रेटर देन H2, सो H1 माइनस H2 फाइंड आउट करते हैं तो आपको मिलेगा आंसर किलोवाट में, डिवाइड बाय 3.5 करते हैं, देन यू विल गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फाइंड द मास ऑफ वाटर वेपर रिमूव्स। पहले देखा हमने हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला था m डेल्टा h, तो वहाँ पे एंथैल्पी का डिफरेंस लिया। यहाँ पे वाटर वेपर कितना रिमूव किया, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का हम डिफरेंस लेंगे। सो वहाँ पे मार्किंग करेंगे ओमेगा 1 ओमेगा 2 का लोकेशन और फिर हमें पता चलेगा, फिर एम डॉट ए तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, सो वी विल गेट एम डॉट वी केजी पर मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंसिबल हीट फैक्टर। तो सेंसिबल हीट फैक्टर के लिए जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि सेंसिबल हीट फैक्टर के लिए हमने देखा है वहाँ पे एक इमेजिनरी ट्रायंगल हमने कंसिडर किया था 1 A and 2। ओके, 2 to A के बीच में हो रहा है सेंसिबल हीट एंड A to 1 के बीच में हो रहा है लेटेंट हीट, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। सो सेंसिबल हीट मीन्स कितना हीट वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, तो हमें देखना पड़ेगा उसका लोकेशन HA और H2। सो SH इज इक्वल टू m डॉट ए एच ए माइनस एच टू, एच ए माइनस एच टू करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सेंसिबल हीट। सेम लेटेंट हीट के लिए मुझे जाना पड़ेगा 1 और A के बीच में, H1 माइनस एच ए करता हूँ तो मुझे मिलेगा लेटेंट हीट LH। m डॉट ए तो ऑलरेडी पता है, सो वी विल गेट LH। और सेंसिबल हीट फैक्टर का फॉर्मूला है SHF इज इक्वल टू सेंसिबल हीट divided by total heat. Total heat means SH plus LH. In case if they ask find out LHF, तो आपको कर सिंपली छोटा सा काम करना है। LHF मीन्स क्या रहेगा, LH डिवाइड बाय टोटल हीट मीन्स SH प्लस LH। ओके फाइन। सो सारे यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट बाय यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आपको क्या करना है कि वहाँ पे सेंसिबल हीट फैक्टर का एक अलग से स्केल दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना है, आपका चेक करना है कि 1 to 2 पॉइंट कहाँ पे है। तो वहाँ पे एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं अलाइनमेंट सर्कल, और अलाइनमेंट सर्कल का पोजीशन कहाँ पे होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस और 50% वाले कर्व पे। तो वो आपको वो मार्किंग करके लेना है और वहाँ पे ऑलरेडी गिवन रहता है। सो मैं आपको शो करता हूँ, वो ऑलरेडी वहाँ पे डार्क रहेगा। ओके यहाँ पे तो कोई कर्व ही नहीं है। ओके, दिस इज अलाइनमेंट सर्कल पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस पे और 50% RH पे। तो यहाँ पे आपको वो रहता है अलाइनमेंट सर्कल, वो आपको देखना है, चेक करना है वो कहाँ पे है। और फिर ये जो लाइन पैरेलल है, तो उसके पैरेलल आपको ये लाइन ड्रॉ करना है अलाइनमेंट सर्कल से, और वो लेके जाना है अप टू सेंसिबल हीट फैक्टर पे।
और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी तो वो आपका रहेगा सेंसिबल हीट फैक्टर। ये भी एक अल्टरनेटिव मेथड है। वापस से रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है आपका अलाइनमेंट सर्कल कहाँ पे है। तो अलाइनमेंट सर्कल होता है 25 डीबीटी और 50% आरएच का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। आपको करना है कि ऊपर वाला जो लाइन है 1 to 2 जो पहले से ड्रॉ किया था, तो उसके पैरेलल में आपको लाइन को ड्रॉ करना है और वो लेके जाना है अप टू सेंसिबल हीट फैक्टर तक। तो वहाँ पे सेंसिबल हीट फैक्टर पे स्केल ऑलरेडी गिवन है, तो वहाँ से भी आपको सेंसिबल हीट फैक्टर पता चल सकता है। ओके, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स लास्ट न्यूमेरिकल। Okay, in last, there is a one important concept, that is the adiabatic mixing of two air streams. Let us consider the two air streams of the mass flows rate is m1 dot and m2 dot are at TD1 phi 1 and second one is at TD2 and phi 2. If these air streams mix adiabatically, then third state will be obtained. तो यहाँ पे से एक एयर स्ट्रीम आ रहा है जिसका अपना प्रॉपर्टीज है, और सेकेंड स्टेज से यहाँ से एक अपना स्ट्रीम आ रहा है जिसका अपना प्रॉपर्टीज है। दे आर गोइंग टू मिक्स बट एडियाबेटिकली। देर इज अ नो हीट गेन एंड नो हीट लॉस। सो वहाँ पे वो मिक्स होगा और एक नया प्रॉपर्टीज फॉर्म करेगा। तो वो आपको फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कुछ डेरिवेशन दिया है, वो आपको देखना है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है दिस फॉर्मूला m.1 एंड m.2। सो ये रेशो आपको याद रखना है। इनिशियल स्टेट था 1 और सेकेंड एयर स्ट्रीम था ये प्रॉपर्टीज पे। दे आर गोइंग टू मिक्स एडियाबेटिकली, तो ऑफकोर्स पॉइंट नंबर थ्रू 3 कहाँ पे रहेगा, वो इन बिटवीन 1 एंड 2 रहेगा। सो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, दैट इज m.1 इज इक्वल टू h3 माइनस h2। मेरा 1 पॉइंट यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ का डिफरेंस देखना है। इफ द पॉइंट नंबर, इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर पॉइंट नंबर 1, तो मुझे 3 एंड 2 को कंसिडर करना है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2, देन आई हैव टू कंसिडर बिटवीन 1 एंड 3, वाइस वर्सा। सो ये आपको याद रखना है, ये एक फैक्टर और ये एक फैक्टर। H3 माइनस H2, H1 माइनस H3। एल्सो अगर वेपर बैलेंस की बात करता है तो सेम ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2। मतलब 1 बोला तो 1 को स्किप करना है, 2 एंड 3 को कंसिडर करना है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2, देन 1 एंड 3 के बारे में बात करनी है। सो न्यूमेरिकल देखते हैं, काफी आसान न्यूमेरिकल्स है इसके। पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 29। पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 29। 800 meter cube per minute of recalculated air at a 22 degrees Celsius dBT and 10 degrees Celsius dPT is to be mixed with 300 meter cube per minute of fresh air 30 degrees Celsius dBT and 50% RH। Means point number 1 and point number 2 का कुछ properties दिया है and they are going to mix adiabatically। Determine enthalpy, specific volume, humidity ratio, dPT, सब कुछ आपको find out करना है। ओके, दिस इज दैट न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 कहाँ पे रहेगा, तो TD1 वर्टिकल लाइन आपको कंसिडर करना है और आपको 5 से मार्किंग करके लेना है पॉइंट नंबर 1।
अभी तो आप प्रैक्टिस हो चुका होगा क्योंकि पॉइंट नंबर 1 कहाँ से मिलेगा 40 डिग्री सेल्सियस पे और 5 उन्होंने गिवन है, तो वहाँ से आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट बोला है TDP2, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज गिवन 20 डिग्री सेल्सियस। तो ड्यू पॉइंट कहाँ पे होता है, तो सैचुरेशन कर्व पे होता है, तो वहाँ पे आपको 20 मार्किंग करके लेना है। सो यहाँ से आपको पता चलेगा एक लाइन 1 to 2, और आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट नंबर 3 कि वो एग्जैक्टली उसका लोकेशन कहाँ पे होगा। सो उसके लिए आपको सॉल्व करना है उसको। ओके, तो हमें m.1 और m.2 ऑलरेडी गिवन है। सो ये रेशियो तो पता था और हमने फॉर्मूला पता है, दैट इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 देन आई हैव टू कंसीडर डिफरेंस बिटवीन 2 to 3, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 देन आई हैव टू कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन 1 and 3। सो हमने उसको वैल्यूज ओमेगा 1 ओमेगा 3 का वैल्यूज, सॉरी ओमेगा 3 तो अननोन है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का वैल्यूज हमने साइकोमेट्रिक चार्ट से पता चलेगा, वो वैल्यूज आपको पुट अप करना है, देन यू विल गेट ओमेगा 3। जैसे ही ओमेगा 3 पता चलेगा आपको पॉइंट नंबर 3 पता चलेगा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओमेगा 3 का आपको पोजीशन पता है, यहाँ पे है। सो वो आप उसको अगर मार्किंग करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 3, और हॉरिजॉन्टल नीचे जाओगे तो आपको उसका पता चलेगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर 3। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सेम है। So we are going to stop here. If you have any doubt in this chapter, then kindly comment, and we will conduct a special live session for solving doubts on this chapter. Okay, stay home, stay safe, stay healthy, take care. Thank you so much. Goodbye.